ओके, वेलकम बैक। एक्चुअली लाइट चला गया था, इसलिए बीच में इंटरप्शन हुआ। तो लेट अस कंटिन्यू। Basically, we are about to discuss this. Yes, so we have seen that whenever we have a this type of so liquid drop, you can see clearly that the work done in order to increase the radius of that liquid drop will be given by this formula, that is 4 pi t into r2 square minus r1 square, no doubt. Next is about if we have supposed to form a soap bubble. देखो ठीक से soap bubble form करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अभी फिर से एक बार हम ये समझ सकते हैं आराम से कि soap bubble how it is different from a liquid drop. तो हम देख सकते हैं clearly the liquid drop is having only one surface free, but actually soap bubble has two surfaces which are there exposed to air. जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे बाहर में तो चलो एयर है, नो डाउट, यहाँ पे लेकिन अंदर में भी एयर है, और इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस सोप बबल के दो सरफेसेस एयर के साथ एक्सपोज्ड है, और इसी वजह से होता ऐसा है ना कि इन ऑर्डर टू फॉर्म द सोप बबल we'll have to do extra work because area is double, so double work done has to be performed. तो इसलिए फिर यहाँ पे work done in order to form the soap bubble or the energy required to form a soap bubble is always going to be equal to surface tension T into change in area. बट अभी पहले तो ये soap bubble था ही नहीं, और जैसे ये बबल यहाँ पे अपेयर किया तो उसकी वजह से उसका जो टोटल एरिया है वो एरिया होगा, अंदर का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर और बाहर के सरफेस का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल जो एरिया है वो बनेगा एक्चुअली 8 पाई आर स्क्वायर, और इसी वजह से हमको जो टोटल वर्क डन जो मिलेगा, टोटल वर्क डन इन ऑर्डर टू form this air bubble or soap bubble will be actually T into 4 pi r square, which is going to be simply 8 pi r square T. तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से, 8 pi r square into T. This is going to be the formula for finding the work done in order to form a soap bubble. तो देखो ठीक से, अभी soap bubble का हमने ये तो देख लिया, उसका formation का energy तो देख लिया, no doubt. But if we have a soap bubble which is going to be increased its radius from R1 to R2 in the same way as here we have done it. So यहाँ पे भी अगर suppose एक soap bubble है हमारे पास, ये समझो soap bubble है जिसका radius already R1 है, और this soap bubble is just getting transformed into another one which is having radius R2 which is somewhat bigger than this. तो एक बड़ा soap bubble के साथ अगर वो convert होने जा रहा है तो इसका मतलब हमने इस सोप बबल का रेडियस इंक्रीज कर दिया। इसका रेडियस अगर मान लो R2 है, ठीक है, तो अभी इस प्रोसेस में जो वर्क डन जरूरी है और एनर्जी रिक्वायर्ड जो है तो वो हमको मिल जाता है, वर्क डन इन दिस प्रोसेस और एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस कैन बी ऑब्टेन्ड टू बी सिंपली द surface tension into change in area once again. But as we know that change in area in this case will actually be equal to 8 pi r square minus r2 square minus 8 pi r1 square. ये 8 pi r1 square और 8 pi r2 square क्यों आया समझा ठीक से, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे बबल के बारे में बताया था कि बबल हैज टू सरफेसेस, one is inner surface and the other one is outer surface, and because of that this bubble, in case of this bubble we'll have to double the area. तो टोटल एरिया जो है इस बबल का वो हमको डबल करना पड़ेगा, और इसी वजह से हमको यहाँ पे 8 पाई r2 स्क्वायर माइनस 8 पाई r1 स्क्वायर मिल जाता है, जिसको ही हम लिख सकते हैं आराम से डेल्टा u इज इक्वल टू 8 पाई t इंटू ब्रैकेट r2 स्क्वायर
minus r1 square. So here is going to be the formula for finding the work done or the energy required in order to uh, increase the radius of this soap bubble from R1 to R2. No doubt. So all these are the formulae which are important for numericals. तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये सब फॉर्मूले जरूरी है, अच्छी तरह से हमको इनको याद रखना है. चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर. नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे. हमने कल बात कर रहे थे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में. तो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, वो हम देख रहे थे कल. तो उसमें हमने ये देखा था कि whenever there is a solid, suppose there is a अगर सपोज हमारे पास एक सॉलिड है तो हम देख पाएंगे आराम से कि सॉलिड के ऊपर अगर लिक्विड ड्रॉप रखा हुआ है तो हम देख सकते हैं कि उसका जो लिक्विड ड्रॉप का जो टेंजेंट है, कोई भी लिक्विड ड्रॉप को जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो टेंजेंट इस लिक्विड सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है उसको ही हम एक्चुअली एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं. सो दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन बोथ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड. तो सॉलिड और लिक्विड दोनों के ऊपर वो डिपेंड करता है, सिर्फ सॉलिड के ऊपर या सिर्फ लिक्विड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो ये अच्छी तरह से याद रखना है. द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन बोथ, दैट इज सॉलिड एज वेल एज लिक्विड. एंड इवन ये भी हमको याद रखना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली depends on the temperature of solids. All these are the properties of angle of contact. You can explain it clearly. The angle of contact actually depends on the temperature of solid. ये temperature solid का temperature कितना है उसके ऊपर depend करता है. For a hot solid, the angle of contact of same liquid may be greater, or for a cold solid, the angle of contact may be less. No doubt. For example, अगर suppose जैसे हम कोई भी एक बर्तन अगर होता है तो उस बर्तन के अंदर अगर पानी के ड्रॉप्स डालते हैं, ये सपोज एक बर्तन है और वो कोल्ड है, तो पानी का ड्रॉप उसमें ऐसे बैठेगा, ऐसे रहेगा. लेकिन अगर वही बर्तन थोड़ा हॉट अगर रखते हैं, तो गर्म करके रखते हैं और उसके अंदर अगर पानी के ड्रॉप्स अगर डालते हैं तो ये इस तरह से बनते हैं. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड. नॉट ओनली सॉलिड बट ऑल्सो द लिक्विड. लिक्विड के भी टेम्परेचर के ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है. बिल्कुल, अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे भी एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली कम होता है. द एंगल ऑफ कांटेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग as the temperature of the liquid goes on increasing, and that is we have to understand and remember. तीसरी बात है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट also depends on the nature of the surface. मतलब ये सरफेस का जो नेचर है, नेचर मतलब अभी जैसे कि ये सरफेस जो है वो डस्टी है, अगर डस्ट उसके ऊपर फैला हुआ है तो उसके केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग होगा. या अगर वो सरफेस जो है वो अगर सपोज क्लीन है तो उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ और होगा. ये सरफेस अगर ड्राई है तो उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग होगा. और ये सरफेस अगर वेट है तो उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग होगा. इवन ये सरफेस जो है वो पॉलिश किया हुआ या रफ है, उसके हिसाब से एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलता है. तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस. रिमेंबर करेक्टली. सो नेचर ऑफ सरफेस, जैसा भी सरफेस होगा तो उसके हिसाब से एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफर करेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मिक्सचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिक्विड. तो लिक्विड के अंदर जो भी कुछ प्रेजेंट है, अगर सपोज हमने जैसे फॉर एग्जांपल अगर पानी के अंदर अगर नमक डाल दिया और उसका अगर ड्रॉप फॉर्म किया, तो दिस इज सपोज सॉल्टी वाटर. And suppose there is another water which is mineral water. बिल्कुल suppose उसके अंदर कुछ भी salt वगैरह डाला हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल वाटर सपोज है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ और होगा एंड सॉल्टी वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ और होगा. अगर शुगर डालेंगे तो भी उसमें से एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ और अलग ही रहेगा. That means the angle of contact depends on soluble or insoluble substances which are present there in the liquid. Remember, so all these are the angle of contact, properties of angle of contact. But generally it happens that if suppose we have a surface, solid surface, which is the liquid which is have a tendency to break the solid. जैसे जो liquid solids के साथ चिपकता है, जैसे हम देखते हैं water with glass. वाटर जो है वो ग्लास के साथ बिल्कुल चिपकता है और उसकी वजह से उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एक्यूट हुआ करता है.
लेकिन ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, सरफेसेस होते हैं जिनके साथ वाटर चिपकता नहीं है, ठीक है, जैसे मर्क्यूरी या मर्क्यूरी इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास, तो मर्क्यूरी कभी भी चिपकता नहीं है ग्लास को, और उसकी वजह से मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो जरूर ऑब्ट्यूज रहेगा, इस तरह से हम ये देख सकते हैं यहाँ पे। So whenever the liquid doesn't weight the solid, then its angle of contact is going to be obtuse. And if a liquid weights the solid, then its angle of contact is going to be acute. And उसके examples है, acute के example है water with glass, ठीक है ना, water and glass pair, you can say there is a angle of contact which is acute. और उसका example जिसमें obtuse हुआ करता है, तो उसका example है mercury and glass. तो ये जो एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे, मर्क्यूरी और ग्लास का जो पेयर है, इनके बीच में का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो हमेशा ऑब्ट्यूज हुआ करता है। देयर आर एग्जांपल्स ऑफ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट के भी एग्जांपल्स है बहुत सारे, जैसा कि हम इससे पहला एग्जांपल जो उसका, तो सिल्वर एंड वाटर। तो वाटर जो होता है, वाटर अगर हम सपोज सिल्वर के किसी भी कंटेनर के अंदर अगर ले लेंगे, तो उस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 बनता है, ये उसका एग्जांपल है। तो ये सब चीजें जो है वो हम समझ सकते हैं आराम से। तो these are the properties of angle of contact. Now we'll see why basically we'll see now the shape of this liquid drop. किसी भी लिक्विड ड्रॉप का जो शेप है वो एक्चुअली सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। 3 तरह के सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तरीके से ठीक से सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, और उसके ऊपर एक लिक्विड ड्रॉप हमने यहाँ पे फॉर्म किया। सपोज दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप व्हिच इज फॉर्म्ड हियर, इस टाइप का लिक्विड ड्रॉप हमने फॉर्म किया है, ठीक है। और समझो कि यहाँ से हमने इसको 3 टाइप के सरफेस टेंशंस ड्रॉ किए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं व्हेनेवर देयर इज अ सरफेस, देयर इज अ सरफेस टेंशन गोइंग टू अपीयर हियर। तो जब जहाँ सरफेस है तो वहाँ पे सरफेस टेंशन है ही है, तो इसलिए यहाँ पे 3 टाइप के सरफेस टेंशंस होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज द लिक्विड, यू कैन से दिस इज लिक्विड, दिस इज गोइंग टू बी द सॉलिड, एंड हियर इट इज गोइंग टू बी द एयर, तो और गैस वी कैन से। तो अभी इसमें होता है ऐसा है ना कि अगर ये सॉलिड हम बात करते हैं, तो इस सॉलिड और लिक्विड के बीच में भी एक सरफेस है। ये जो सरफेस हम देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज द सरफेस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सो वी कैन कॉल द सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड टू बी सिंपली, सपोज इट इज डिनोटेड बाय T1, ओके। तो अगर उसको हम T1 से डिनोट करते हैं, T1 is going to be the surface tension between solid and liquid. Okay, so this is T1 here, we'll say, and there is another surface tension between solid and air. We can call it as T2. तो अगर उसको हमने T2 बोल दिया तो हम ये देख पाएंगे यहाँ पे T2 is going to be the surface tension between solid and air. Just it will be along the tangent here like this. तो ये बन गया हमारा T2, and this T3 is going to be the surface tension between the solid and liquid and air. Basically लिक्विड और एयर, इन तीनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो सरफेस टेंशन है, तो उसको हम बोल देंगे T3, which is going to act along this line joining this along the tangent here. तो इस लिक्विड के सरफेस को टेंजेंशियल डायरेक्शन में T3 काम करने वाला है। तो अभी हम ये देख सकते हैं आराम से कि ये तीनों एक्चुअली सरफेस टेंशन मतलब ये एक तरह से क्या है ना, फोर्सेस ही है। All these are the forces which are acting at this point P here. तो इस पॉइंट को अगर हम नाम दे देंगे कुछ, अगर A ऐसा नाम दे देंगे, तो इस A पॉइंट के ऊपर जो काम कर रहे हैं फोर्सेस, वो सब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली कि all these 3 forces are acting on this particle at A, we'll see, and hence because of this, under the action of these forces, the nature of this particle at A will be such that to be in equilibrium. तो अगर ये A इन तीनों फोर्सेस के चलते भी अगर इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे 0 बनने जा रहा है। The resultant force acting on this whole particle at A will be going to be 0, and which is possible only when the sum of all these forces is 0, means leftward force
and rightward force must be exactly equal. तो अब इसमें leftward forces की अगर बारे में बात करते हैं तो हम समझ सकते हैं T2 is the only leftward force acting on this particle here, but here T1 is going to be another force which is going to act rightwards. बट अभी यहाँ पे T3 को अगर हम दो कंपोनेंट्स में सपोज रिजॉल्व करेंगे तो हम समझ सकते हैं आराम से कि T3 को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद जो उसके ये मिलते हैं कंपोनेंट्स मिलते हैं तो उनमें से एक कंपोनेंट जरूर इस T1 के तरफ काम करेगा एंड दैट इज वी हैव टू कंसीडर. तो अगर हम सपोज इस T3 को अगर इस तरह से रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में तो इसमें से एक कंपोनेंट जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा. तो इसको हम बोल सकते हैं अगर इस एंगल को हमने अगर थीटा बोल के रखा है दैट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ कांटेक्ट, देन वी कैन सपोज दिस कंपोनेंट टू बी T3 into cos theta because it's the horizontal component or it is the adjacent component. इसलिए यहाँ पे ये बन जाएगा T3 cos theta and the second component here will be directed vertically upwards here like this. तो ये जो उसका second component है वो यहाँ पे काम करेगा जिसको हम बोल सकते हैं T3 into sin theta. No doubt. Here this T3 sin theta is just going to balance the weight of this particle A which is acting vertically downwards. तो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट काम कर रहा है उसको बैलेंस करने का जो काम है वो T3 sin थीटा ये कंपोनेंट कर रहा है नो डाउट. लेकिन एट दिस टाइम दिस ये T3 cos थीटा फोर्स जो है वो एक्चुअली T1 के अंदर ऐड होने जा रहा है और उसका जो सम है उन दोनों का जो सम है वो T2 को बैलेंस करना पड़ेगा जरूर. और उसकी वजह से हम देख पाएंगे यहाँ पे कि क्लियरली कि द टोटल नेट फोर्स you can say that net force on this particle if it has to zero then that means that the total leftward force which is going to be T2 here has to be balanced by the total rightward force acting on it here. So यहाँ पे rightward force कितना है तो वो जो T1 और T3 cos theta इन दोनों का T3 cos theta इन दोनों का सम है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं T2 is going to be actually T1 plus T3 cos theta. ये एक सिंपल सा इक्वेशन जो है वो हमको मिल जाएगा यहाँ पे. इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग दिस cos थीटा. तो ये cos थीटा निकालने के लिए यही इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा. इसमें से हमको ये अगर T1 को अगर उस तरफ लेके जाए तो हमको ये मिलेगा T2 minus T1 is going to be equal to T3 into cos थीटा. तो ये हमको मिल जाता है. और नेक्स्ट स्टेप में हम समझ सकते हैं कि दिस cos थीटा कैन इमीडिएटली बी फाउंड आउट to be equal to cos theta is equal to simply T2 minus T1. See here, T2 minus T1 that is to be divided by T3 here, and this is going to be the final formula for this angle of contact. So angle of contact in case of a drop will be defined to be like this: T2 minus T1 upon T3. This gives us the cos theta, value of cos theta here. And that's why we can see clearly that if suppose we have a drop which is like suppose एक drop हमारे पास जो है वो इस तरह का है जो कि जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली ऑब्ट्यूस है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं उसको. Suppose that this angle of contact of the drop is obtuse like this. तो ये समझो ड्रॉप इस तरह से. Suppose this is the drop. We can say clearly that this in that case all these three forces which we have seen already. तो ये जो T2 है T1 जो है वो तो नो डाउट इस डायरेक्शन में ही होगा जरूर. This is going to be T1. Okay. But here T2 will be outwards. You can see. So this is going to be T2 here, and then we can say T3 will have the component like this. तो T3 जो है वो इस तरह से कुछ हमको दिखाई देगा. ये देखो ये T3 है इस तरफ यहाँ पे. ये T3 इस तरफ होने की वजह से इसका जो एक कंपोनेंट है इस केस में तो देखिए ठीक से अगर इसको हमने थीटा बोल दिया फिर से एक बार तो इसका ये जो कंपोनेंट है नीचे वाला कंपोनेंट ये एक्चुअली नेगेटिव होगा और उसकी वजह से T3 cos थीटा नेगेटिव होने की वजह से
वो एक्चुअली T1 में से सब्ट्रैक्ट होगा और इसकी वजह से इक्वेशन जो है वो थोड़ा बदल जाएगा। लेकिन अगर इस इक्वेशन के को साथ में रख के या सामने रख के अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं आराम से कि इन दिस केस वी हैव डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग जो कंडीशंस है हमारे पास या अल्टरनेटिव्स हमको मिलते हैं। तो सबसे पहला जो अल्टरनेटिव हमारे पास है वो ये है कि इफ इट हैपेंस दैट suppose T2 is going to be greater than T1। तो अगर T2 T1 से बड़ा है तो हम समझ सकते हैं आराम से कि ये जो फोर्स है वो अगर बड़ा है इस फोर्स के कंपैरिजन में, तो उस केस में ऑब्वियसली ये होगा कि ये जो पॉइंट A है इट विल हैव अ टेंडेंसी टू move in this direction and because of that this angle of contact will be acute। and वैसे भी देखो मैथमेटिकली अगर देखते हो ठीक से तो T2 माइनस T1 T2 ग्रेटर देन T1 होने की वजह से ये जो T2 माइनस T1 रहने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव रहने की वजह से ऑब्वियसली cos थीटा जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा एंड cos थीटा पॉजिटिव होने का सीधा मतलब ये है कि थीटा मस्ट बी लेस देन 90 मींस इट विल बी एक्यूट, नो डाउट। तो मैथमेटिकली भी हमको ये सबसे पहला केस जो है वो यही मिल रहा है कि इफ सपोज T2 is greater than T1 then automatically this T2 minus T1 becomes positive and cos theta becomes positive, which is possible only when theta is going to be less than 90। So this is our case number 1, so you can consider it as case 1 where T2 is going to be greater than T1। Case 2 here we can discuss about is going to be simply, case 2 is that T2 is less actually than T1। If suppose it happens that T2 is less than T1 then इसका सीधा मतलब ये होगा कि T2 minus T1 will actually be less than 0, it will be negative and since it is negative you can consider that this cos theta will also be negative। तो यहाँ पे cos theta का जो वैल्यू है वो भी obviously negative आ जाएगा क्योंकि T3 ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो जैसे ही cos theta नेगेटिव हो जाता है तो हमको पता है ऑलरेडी cos theta कब नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब ही theta must be greater than 90 and hence we can say that this theta will be obviously obtuse। That means we can have this situation obtained here when theta is obtuse। तो यहाँ पे T2 T1 से बड़ा हो T2 छोटा होने से अगर मान लो कि T1 जो है वो छोटा है T1 बड़ा है और T2 छोटा है तो उस केस में हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो नेट फोर्स जो है इस पार्टिकल के ऊपर जो काम करेगा, एक पार्टिकल के ऊपर जो काम करेगा वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा और इस नेट फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल A है वो इस डायरेक्शन में मूव करने का टेंडेंसी रखेगा और उसकी वजह से वो अगर इस तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली उसके साथ सरफेस को भी उस तरफ लेके जाएगा और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को ऑब्ट्यूज बना देगा इस तरह से। और इसलिए हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बिकम ऑब्ट्यूज ओनली इन दिस केस when the T1 is going to be greater than T2, no doubt, which is the condition 2, case 2 we can say T1 is going to be greater than T2 and in that case we can say that the angle of contact will be obtuse, no doubt। And the third condition or third case we can discuss about is simply see here। तो अगर हमने नेक्स्ट कंडीशन अगर कंसिडर किया तो समझ सकते हैं केस 3 we can say in this case T2 is going to be simply equal to approximate equal to T1। अगर T1 और T2 इक्वल हो गया तो सीधी बात यह है कि इस केस में क्या होगा तो T2 minus T1 will become actually 0 and since T2 minus T1 becomes 0 you can say clearly that in that case cos theta will also be equal 0। तो अगर cos theta 0 बन गया तो ऐसे केस में सीधी बात है कि थीटा विल बिकम इक्वल टू 90 and hence you can say that the angle of contact will become equal to 90 degree in case when this T1 and T2 just balance each other। अगर T1 और T2 इक्वल है तो उस केस में थीटा को 90 बनना पड़ेगा। तो ये चीज हमको समझ सकते हैं आराम से। और उसके भी अलावा और एक केस हम समझ सकते हैं आराम से, नेक्स्ट केस जो है which is actually not possible। So this is the next case, you can express it as case 4 here T2 minus T1 is approximately equal to T3
अगर ऐसा होता है चेक करो क्या होगा। तो T3 minus T1, T2 minus T1 is approximately equal to T3। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में हम समझ सकते हैं आराम से कि ये जो T2 minus T1 है, it is there in the numerator and T3 is there in the denominator. If suppose both of them become equal, then obviously the ratio will just get cancelled. And if we cancel this out, then we can say that that means the value of cos theta is going to become 1. So since this T2 minus T1 is approximately equal to T3, it implies that this cos theta will approximately become equal to 1. And since cos theta becomes equal to 1, it is possible only when theta becomes exactly equal to 0 degree. And this happens only in case of water with pure water with glass. तो जब ग्लास के साथ वाटर का कांटेक्ट होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट becomes 0, and in that case we can say that this situation takes place. Almost T3 minus T1 का जो वैल्यू, T2 minus T1 का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट T3 के बराबर होता है, और इसकी वजह से हम यहाँ पे ये 4 केसेस देख पाते हैं। देखिए ठीक से एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट। सबसे पहले हमने देखा कि there are 3 types of surface tensions. One is the surface tension between solid and liquid, say. Then the second is the surface tension T1, T2, which is there between solid and air here. तो solid और air के बीच में का जो surface tension है उसको हमने नाम दे दिया T2। और तीसरा surface tension हमारे पास T3, जो कि the surface tension between liquid and air. So you can call it as T3. So this T3 is resolved into 2 components. One is T3 cos theta, which is the adjacent one, and this other one is T3 sin theta. This T3 sin theta is of no use because it just balances the weight of this particle. But this T3 cos theta just adds up to T1 so as to balance T2. And hence we can say that the sum of T1 and T3 cos theta just becomes equal to T2. And hence we can say T2 minus T1 becomes equal to T3 cos theta, which gives cos theta is equal to T2 minus T1 upon T3. This is the formula for finding the angle of contact in any one of the cases. So अभी यहाँ पे केस 1 में हम देखते हैं यहाँ पे कि T2 अगर बड़ा है T1 से तो उस केस में T2 minus T1 पॉजिटिव होगा, और उसकी वजह से cos थीटा भी पॉजिटिव होगा, जो होता है हमेशा जब थीटा लेस देन 90 होता है तब। दूसरा केस जब T2 छोटा होता है T1 से तो T2 minus T1 तो नेगेटिव होगा, और उसकी वजह से cos थीटा भी नेगेटिव होगा और थीटा ऑब्ट्यूज बनेगा। और तीसरा केस जब T2 और T1 इक्वल बनेंगे तो T2 minus T1 0 बनेगा और cos थीटा 0 बनेगा, और उसकी वजह से थीटा जो है वो 90 बनेगा, क्योंकि हमको पता है cos 90 is 0। और चौथा केस जो हम देख पाते हैं कि T2 minus T1 becomes approximately equal to T3. In that case we can say cos theta is equal to 1 and theta becomes equal to 0 exactly. And at the same time अभी लेकिन T2 minus T1 का greater than T3 होना वो तो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस केस में फिर क्या होगा, cos थीटा जो है cos थीटा एक्चुअली ग्रेटर देन 1 बनेगा, जबकि हमको पता है ऑलरेडी कि वैल्यू ऑफ cos थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and +1, सो वी कैन नॉट से दैट दिस विल हैपन एनीवेयर। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये केस पॉसिबल ही नहीं है, इट्स अ इम्पॉसिबल केस यू कैन से। सो ये T2 minus T1 का T3 से बड़ा होना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। So these are different conditions for angle of contact. We have seen this now. So the next concept here is about the explanation of angle of contact. Why basically the angle of contact is not the acute and sometimes, and why it is obtuse sometimes. तो होता क्या है ना कि कौन से केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है और कभी कभी एक्यूट होता है, तो उसका रीजन क्या है, एक्चुअली क्यों ऐसा होता है, तो वो हमको अच्छी तरह समझना है मॉलिक्यूलर बेसिस पे। देखिए ठीक से पहले हम 2-3 स्लाइड्स देखेंगे एक बार, इसमें क्लियरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक तो ये देखिए ठीक से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट व्हेनेवर द लिक्विड comes into contact with the solid, so in that case we'll see here that the tangent drawn to the surface here, तो यहाँ पे ये जो लिक्विड का जो सरफेस है वो सरफेस इस तरह से यहाँ पे ऊपर जाके कर्व्ड हो गया और इस तरह से जाके चिपक गया इस सॉलिड को। तो इस केस में अगर हम इस लिक्विड सरफेस को अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
तो वो इस तरह से आएगा और ये कहलाएगा एक्चुअली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो कि यहाँ पे एक्यूट बन गया। इन दिस केस इट्स एक्यूट एक्चुअली, बट इन द अदर केस when we take the mercury like substance, अगर मर्क्यूरी के जैसा सब्सटेंस जो है वो अगर हम देते हैं किसी सॉलिड सरफेस या ग्लास के अंदर, तो हम इस केस में देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है, मर्क्यूरी व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द सॉलिड, it just bends downwards and the molecules are just depressed down and it touches the surface like this. If we draw the tangent to the surface at this point of contact here, then it will be like this, and its angle made by this tangent with the surface of solid will actually be acute, and that is the angle of contact in this case here. तो यहाँ पे मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंसेस का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एक्यूस बनता है, जबकि वाटर के जैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट बनता है. What is the reason behind this? We have to understand here. Again, we can see the clearly in the next slide also. तो ये दूसरा जो स्लाइड दिख रहा है यहाँ पे भी हम वही देख पाते हैं क्लियरली. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर जब भी हम वाटर लेते हैं तो उसका जो सरफेस है वो हम समझ सकते हैं आराम से. इट इज ऑलवेज लाइक दिस. इट्स लाइक ये जो है कॉनकेव हुआ करता है, कॉनकेव इसको हम बोल सकते हैं आराम से. कॉनकेव सरफेस हमको दिखता है वाटर का. लेकिन वही अगर मर्क्यूरी के जैसा सब्सटेंस अगर हम लेते हैं ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसका जो ऊपर का सरफेस है वो हमेशा इस तरह से कॉन्वेक्स दिखाई देता है. एंड दैट इज बेसिकली द डिफरेंस हियर. इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट विल लुक लाइक दिस. तो ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट एक्चुअली सरफेस के साथ एक एंगल ऑफ कांटेक्ट तैयार करेगा जो कि एक्यूट है. और यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से सॉलिड सरफेस के साथ, तो सॉलिड के साथ जो एंगल ऑफ वो कांटेक्ट वो बनाता है वो एक्चुअली ऑब्ट्यूस रहेगा. And that is basically the difference between these two surfaces or two liquids. Basically, this is the liquid like water. ये water के जैसा liquid हम समझ सकते हैं. And this is the liquid like mercury. You can understand. And in case of this mercury here, the surface tension. तो surface tension किस तरह से यहाँ पे रोल प्ले करता है वो भी हमको एक्चुअली समझना है. लेकिन अभी फिलहाल हम ये स्लाइड्स में सिर्फ एग्जांपल देखेंगे ठीक से. What happens exactly? देखो ठीक से यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं क्लियरली कि जो है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ बेंड हो गए. मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर तरफ ये इस तरह से चिपकने लग गए. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी एक्यूट इन दिस केस, नो डाउट. इवन वी कैन सी क्लियरली हियर द नेक्स्ट स्लाइड आल्सो. सो यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं इस तरह से. तो इस क्रॉस सेक्शन में हम पहले क्रॉस सेक्शन जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लियर देख पाते हैं कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे एक्यूट है. समझ सकते हैं ठीक से. ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एक्यूट दिख रहा है हमको, लेकिन जबकि यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ऑब्ट्यूस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स बन रहा है जबकि यहाँ पे कॉनकेव सरफेस फॉर्म हो रहा है. सो व्हेनेवर देयर इज अ कॉनकेव सरफेस फॉर्म्ड हियर वी कैन से दैट द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज गोइंग टू बी एक्यूट. बट व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्वेक्स सरफेस फॉर्म लाइक दिस देन द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूस, नो डाउट. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हमको समझनी है. एंड here also you can see clearly the same thing basically. Okay, तो ये तो हमने समझ लिया होगा कि एक्चुअली एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते किसको है और कौन से लिक्विड्स के बारे में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट बनता है और कौन से टाइप के लिक्विड्स के बारे में एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस बनता है. तो अभी हम ये देखेंगे what is the reason behind that, why basically the angle of contact becomes obtuse and acute for different liquids. So, सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं ऐसे लिक्विड्स के बारे में जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट होता है. तो देखो ठीक से, इफ यू हैव दिस लिक्विड, ये समझो एक लिक्विड है जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है. ऐसे कौन से लिक्विड्स होते हैं जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है? तो वाटर, केरोसिन, मिल्क, ऑल दीज आर द लिक्विड्स. तो सपोज हम ये इस टाइप का सरफेस ड्रॉ करते हैं. दिस इज द सरफेस ऑफ सॉलिड बेसिकली, एंड सपोज दिस इज द लिक्विड. ये सपोज लिक्विड है यहाँ पे. ओके, एंड सपोज दैट देयर इज अ ये लिक्विड है यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरफ जो है वो हम देख सकते हैं सॉलिड का सरफेस होगा. ये सॉलिड का सरफेस है.
और ये जो है वो लिक्विड है, हम समझ सकते हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली एयर होगा जरूर। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो पार्टिकल्स है ए के जैसे, यहाँ पे इस पार्टिकल को हम नाम दे देंगे स्पेशली ए, जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। समझ सकते हैं क्लियरली, ये ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, समझ सकते हैं। One part of that sphere of influence lies in liquid here. The second part of this sphere of influence lies in solid. ये जो पार्ट है वो सॉलिड के अंदर लाई करता है, और ये तीसरा जो पार्ट है वो एयर के अंदर लाई करता है। ये जो पार्ट है वो एयर के अंदर लाई करता है, ठीक है। अभी इसमें से हम देख सकते हैं कि इस पहला जो पार्ट है उसका लिक्विड के अंदर जो उसका पार्ट लाई करता है, तो मॉलिक्यूल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो हम थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे तो थोड़ा समझने में आसानी होगा। Suppose this is the sphere of influence of the liquid. Okay, so this part contains solid, this part contains air, and this part contains liquid. Okay, now we'll see all these liquid molecules here. तो यहाँ पे जो liquid molecules है सब, वो उसको इस molecule A को इस तरफ खींचेंगे with a force which is the cohesive force actually. तो कोहेसिव फोर्स इसके ऊपर काम करेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे बाय सिमेट्री इट विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड एनीवेज। तो ये जो एंगल है वो एक्चुअली 45 डिग्री बनने वाला है। तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे दिस फोर्स एक्चुअली विल बी कॉल्ड एज FC because it stands for cohesive force. C stands for cohesive and F stands for force obviously. The cohesive force will be acting on this particle here in this direction. The next here is the solid. Solid की वजह से जो पूरा इस तरफ पूरे ये मॉलिक्यूल्स जो फैले हुए हैं ये पूरे 180 डिग्री पे फैले हुए हैं। तो कोई मॉलिक्यूल्स उसको ऊपर तरफ खींचेंगे, कोई मॉलिक्यूल्स उसको नीचे की तरफ खींचेंगे। इनका सबका इफेक्ट ये होगा कि दिस मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन हियर। तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक एक्सपीरियंस करेगा जो FA कहलाएगा। FA stands for again adhesive force. You can see FA, A means adhesive, and hence we can say that the FA will be the adhesive force acting on this particle, which is directed at right angles to the surface of solid here. And this part contains air molecules, but these air molecules, as we know, are negligibly small in number, and that's why these molecules will not be able to exert any force on this molecule in this direction. So we can neglect safely the force acting on this molecule due to the air molecules. Air molecules की वजह से जो force act हो रहा है उसको हम neglect कर सकते हैं। Even at the same time ये जो force due to the gravity जो है उसको भी हम neglect कर सकते हैं। तो main जो force काम कर रहा है इनके ऊपर तो वो है एक तो FC और FA। ये दोनों के ही वजह से ये सरफेस का नेचर डिसाइड किया जाता है। अभी और एक इम्पोर्टेंट बात हमको समझनी है अच्छी तरह से कि ये बात एक्चुअली बहुत बेसिक बात है, फंडामेंटल बात है, जो जिसका इसके साथ वैसे डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमको उसको यूज करना है आगे चल के, इसलिए मैं पहले से आपको इसको समझा देता हूँ। देखो ठीक से एक सिंपल सी बात ऐसी है कि द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑलवेज ट्राइज टू बी परपेंडिकुलर टू द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट लिक्विड। सो रिमेंबर ऑलवेज द सरफेस ऑफ लिक्विड always tries to be perpendicular to the force acting on it. The surface of liquid is always perpendicular to the force acting on it. ये जो है वो हम अलग अलग एग्जांपल्स लेके प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है सपोज एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर अगर सपोज हमने वाटर या कोई भी लिक्विड अगर ले लिया तो हम देख पाते हैं यहाँ पे कि जो कंटेनर का जो बीच वाला जो पोर्शन होता है तो वो हमेशा फ्लैट रहता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होता है ऐसे। तो इसका रीजन क्या है? व्हाई द लिक्विड सरफेस रिमेन्स फ्लैट is because whenever this container is containing the liquid, all the molecules on the surface will have a force experienced due to gravity. तो ये gravitational force जो इनके ऊपर काम कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे है, और इस फोर्स को परपेंडिकुलर रहने के लिए ही ये सभी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअली इस तरह से परपेंडिकुलर बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात हमने समझा कि द सरफेस ऑफ लिक्विड, देखो इस तरह से यहाँ पे सरफेस ऑफ लिक्विड जो यहाँ पे है तो वो सरफेस इस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को जरूर परपेंडिकुलर है, ये हम क्लियर देख पा रहे हैं यहाँ पे।
So this is the first example of this statement, that surface of liquid always tries to be perpendicular to the force acting on that liquid. दूसरा example है, if we suppose we take a bucket and suppose tie it with a string and suppose we revolve it in a circle. Suppose एक bucket हमारे पास है और उसके अंदर हमने पानी लिया, और ये suppose bucket है और उसके अंदर हमने पानी लिया और उसको एक suppose रस्सी बांधी, रस्सी बांध के अगर उसको हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर घुमा दिया, ये सपोज इसे एंड पॉइंट के अबाउट अगर इसको इस तरह से हमने घुमा दिया गोल गोल, तो हम देख सकते हैं आराम से कि जैसे ये पानी जो है वो घूमने लगता है, तो इस बकेट के अंदर जो भी पानी का लेवल है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल रहेगा, सॉरी। तो ये जो वर्टिकल लेवल रहने का रीजन क्या है? व्हाई द वाटर लेवल बिकम्स वर्टिकल? बिकॉज all the particles of liquid here will experience a force due to centrifugal force which is acting away from the center and along the radius. Centrifugal force acting on this, all the molecules of this liquid will be acting horizontally outwards, and that's why in order to be perpendicular to that force, the surface of liquid becomes vertical like this. So ये जो liquid का surface vertical बनता है, उसका reason ही ये है कि the force is horizontal and that's why the surface becomes vertical. तो जब देखो यहाँ पे कि force जब vertical था तो surface horizontal था, but when force actually becomes horizontal, यहाँ पे force जो है वो horizontal बन गया, तो उसकी वजह से surface जो है वो vertical बन गया। तो ये हम समझ सकते हैं कि फिर से एक बार हमको ये पता चल रहा है कि surface of liquid always tries to be perpendicular to the force acting on it. और तीसरा एग्जांपल जो सबसे बड़ा एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो वो है कि वी नो दैट अर्थ जो है, पूरे अर्थ के बारे में अगर हम समझते हैं ठीक से, तो अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट 3/4% वाटर है, 3/4 जो पार्ट है वो वाटर का ही है। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज समंदर है, यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक समंदर है, इवन यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से समंदर है। तो अर्थ का जो शेप हमको स्पेरिकल दिखता है वो एक्चुअली लैंड की वजह से नहीं बल्कि वाटर की वजह से है। तो वाटर का जो सरफेस है वो ही इस तरह से कर्व बनता है समंदर का, मतलब ये जो सी है, सपोज ये दिस इज द ओशन, सो द सरफेस ऑफ ओशन एक्चुअली बिकम्स कर्व्ड लाइक दिस, दैट इज बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। सपोज ये अर्थ का सेंटर है, तो अर्थ का जो सेंटर है, सेंटर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो वो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट पे जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा तो वो जरूर इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑब्वियसली। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इन ऑर्डर टू बी परपेंडिकुलर टू दिस फोर्सेस, the surface of surface of water actually becomes like this here and this it becomes like this here. तो यहाँ पे जो इस फोर्स को ही परपेंडिकुलर बनने के लिए जो सरफेस है वाटर का वो इस तरह से कर्व बनता है। एट एवरी पॉइंट इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इवन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि द फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड इन ऑर्डर टू बी परपेंडिकुलर टू दैट फोर्स द सरफेस ऑफ वाटर विल बिकम लाइक दिस हियर। इवन एट दिस पॉइंट आल्सो द force will be directed towards the center, so in order to be perpendicular to that, the water surface will become like this here. So at every point the water surface becomes tangential, and that is because of this fact. So this is the third proof we can understand. So we can just convinced that this happens, that the surface of liquid always tries to be perpendicular to the force acting on it, and this is basically the important thing to understand. ओके तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, अभी चलो ये तो एक बार हमने अगर समझ लिया तो हमको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो कोई सिचुएशन में एक्यूट क्यों बनता है और कोई सिचुएशंस में ऑब्ट्यूज क्यों बनता है। तो ऐसा होता इसलिए है कि देखो ठीक से, सबसे पहले हम ये डायग्राम जो है वो 2 बार कॉपी करेंगे एज इट इज, क्योंकि हमको 2 एक्सप्लेनेशंस देने हैं। एक तो एक्यूट क्यों बनता है उसका, और दूसरा उसके बाद फिर ऑब्ट्यूज क्यों बनता है उसके बारे में। तो let us copy this diagram here. Okay, so this is the first diagram here.
and again we can just copy it and keep it aside so that we can use it to explain why the angle of contact is obtuse sometimes. तो देखो सबसे पहले हम ये रीजन देखेंगे why this angle of contact is acute. तो थिंक अबाउट acute. तो acute क्यों होता है angle of contact, उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो it happens only in case of the liquids like water. तो वाटर के जैसे जो लिक्विड्स होते हैं जो एक्चुअली सॉलिड को चिपकते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका कोहेसिव फोर्स बहुत छोटा होता है और एडेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है. मतलब अगर सपोज ग्लास के अंदर हमने अगर वाटर लिया, ये ग्लास सपोज है, ग्लास का एक कंटेनर है और उसके अंदर अगर हमने वाटर लिया तो हम देख पाते हैं कि वाटर के अपने जो मॉलिक्यूल्स है, ये सपोज वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना अगर सपोज हम कहें ये एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है और ये एक मॉलिक्यूल सॉलिड का है. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू दिस फोर्स हियर. तो ये जो बात क्लियरली कहलाती है कि एडेसिव फोर्स Fa is actually going to be greater than Fc in case of water like substances. जो सब्सटेंसेस वाटर को मतलब सॉलिड को चिपकते हैं उनके बारे में होता ऐसा है ना कि Fa is always going to be greater than Fc, and because of that only, see here what changes in the diagram can be made here is, तो हम यहाँ पे डायग्राम के अंदर क्या चेंजेस हमको करने जरूरी है, तो हम देख सकते हैं Fa should be greater than Fc. तो उसके लिए हमको ये समझना होगा Fc को थोड़ा सा हमको छोटा बनाना होगा. So let us draw this Fc slightly smaller. तो ये Fc को थोड़ा छोटा बनाएंगे और at the same time we have to draw this Fa to be greater. तो इस Fa को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इस तरह से और इस Fc को अगर थोड़ा छोटा बना दिया, इतना ही सपोज Fc है, तो अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इनका जो ये है, इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट डिसाइड करेगा कि इस वाटर का जो सरफेस है वो कैसे बनेगा. तो Fc और Fa इन दोनों का रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर रहने के लिए ये लिक्विड का सरफेस जो है वो ट्राई करेगा. तो अभी देखो ठीक से, जब हम बात करते हैं Fa is going to be greater than Fc, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, तो हम देख पाते हैं उसके लिए हमको डायग्राम निकालना पड़ेगा, पैराग्राम निकालना पड़ेगा. ये सपोज बन गया हमारा पैराग्राम. So this is going to be the paragram, and according to the paragram law, the diagonal of those two vectors gives us the resultant. तो यहाँ पे ये जो डायगोनल बनने वाला है, ये देखो ये ठीक से, तो this diagonal will give us the net force acting on this particle like A. तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस F के डायरेक्शन में काम कर रहा है. सबसे पहले हम ये काम करेंगे, ये Fa जो है वो Fa एक्चुअली यहाँ पे है, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज एक्चुअली Fa एंड Fc इज एक्चुअली हियर, ये Fc है हमारा और इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे रहने वाला है. This will be denoted by F actually. And now the main thing is that just we have proved that whenever the liquid is in contact with any solid, so what happens is the total the surface of liquid always tries to be perpendicular to the net force acting on it. अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, ये नेट फोर्स एक्चुअली, तो इसको परपेंडिकुलर रहने के लिए लिक्विड जो है वो ऐसा रहना जरूरी है, लिक्विड का जो सरफेस है वो ऐसा बनना जरूरी है. तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है कि the particles like A here just get lifted up and form the acute angle of contact here. यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो एक्यूट बनता है उसका रीजन यही है कि यहाँ पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनके ऊपर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है और इस रिजल्टेंट ऑफ Fc and Fa lies outside the liquid, and because of that this in order to be perpendicular to that force, the molecules like A just gets lifted up, and because of that the surface becomes concave like this. तो ये जो है सरफेस इस तरह से कॉन्केव बन जाता है और यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वो इस तरह से इसको परपेंडिकुलर रहता है और उसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको इस F को परपेंडिकुलर रहने के लिए ही सरफेस जो है वो इस तरह से
कॉन्केव बनता है और एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म करता है। ये बात सबको समझ में आई होगी, आई होप सो। ये देखो ठीक से, ये इसको अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इसको परपेंडिकुलर है, देखो ये इसको परपेंडिकुलर है, और इसको परपेंडिकुलर बनने के लिए ही जो सरफेस है वो इस तरह से कॉन्केव सरफेस फॉर्म करता है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को एक्यूट बना देता है। अभी बात करते हैं दूसरा केस की, जबकि यहाँ पे दूसरा केस जिसमें सॉलिड इज इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड एंड हियर इन दिस केस मर्क्यूरी लाइक सरफेसेस आर देयर। तो यहाँ पे जो सरफेसेस है या लिक्विड जो है वो मर्क्यूरी के जैसा रहेगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि सपोज किसी कंटेनर के अंदर अगर हम मर्क्यूरी ले लेंगे एंड सपोज वी हैव दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ मर्क्यूरी हियर, तो ये एक मॉलिक्यूल है मर्क्यूरी का और समझो एक दूसरा मॉलिक्यूल है मर्क्यूरी का। तो इन मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जबकि अगर सपोज ये जो लिक्विड का मर्क्यूरी का जो मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे होता ऐसा है कि Fc एक्चुअली इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन Fa। मतलब मर्क्यूरी के जो अपने मॉलिक्यूल्स है, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से खींचते हैं, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जितना ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स है वो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स को नहीं खींच सकते हैं, तो इतना फोर्स एक्सर्ट वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी के कारण होता ऐसा है ना कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय कोहेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ मर्क्यूरी is greater than the adhesive force exerted by the glass or mercury, and because of that what changes needed to be done in the diagram is simply we have to extend this Fc here। तो Fc को हमको और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा और Fa को थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा। so let us do that। so Fa छोटा बन गया और Fc जो है वो थोड़ा बड़ा बनने जा रहा है, एक्सटेंड करने वाले हैं उसको। और अभी हम ये मॉलिक्यूल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो भी हम थोड़े समय के लिए बाजू में रखेंगे। Okay, so you can understand here this Fc is going to be greater। तो इस Fc को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा कुछ हमको दिखाई देगा वो। So this is going to be Fc, alright, and at the same time Fa is going to be very small। Fa is very short because adhesive force होता ही छोटा है। तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं आराम से कि इनका जो रिजल्टेंट है वो फिर से हमको पैराग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। So this is going to be the parallelogram and the diagonal of that parallelogram will give us the resultant। So if we draw the diagonal, then this is the first common vertex, and if we draw the diagonal of this parallelogram, then this diagonal actually falls within the liquid, and this will be denoted by F actually, and liquid now will try to be perpendicular to this force F actually। तो इसको परपेंडिकुलर रहने के लिए लिक्विड के सरफेस को तो ऐसा रहना पड़ेगा, देखो ठीक से। तो अगर इस सरफेस को अगर हम इस तरह से अगर सरफेस इस तरह से अगर रखना है तो उसके लिए इस पॉइंट्स जो एक मॉलिक्यूल्स लाइक A जो है, दिस मॉलिक्यूल्स लाइक A विल हैव टू बेंड डाउनवर्ड्स, दे विल हैव टू डिप्रेस डाउन। तो इनको नीचे की तरफ यहाँ पे डिप्रेस होना पड़ेगा और उसकी वजह से यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस है वो इस तरह से बेंड होता है नीचे की तरफ, ताकि उसका जो टेंजेंट बन जाए वो टेंजेंट एक्चुअली इस फोर्स F को परपेंडिकुलर बन जाए। तो यहाँ पे इस फोर्स F को परपेंडिकुलर रहने के लिए ही जो मॉलिक्यूल्स लाइक A जो है वो नीचे की तरफ बेंड करते हैं और एक कॉन्वेक्स सरफेस फॉर्म करते हैं और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को ऑब्ट्यूज बना देते हैं। ये हम समझ सकते हैं आराम से, and this is basically the explanation of angle of contact, why it is obtuse। So why the angle of contact is obtuse? Basically it depends on the cohesive force and adhesive force। In case of mercury like substances, Fc is going to be greater than Fa, so the resultant of Fc and Fa lies within the liquid, and in order to be perpendicular to that force, the liquid molecules like A just get depressed down and form a convex surface and make an angle of contact obtuse like this। So here in this case the angle of contact becomes obtuse, and why the angle of contact is acute? तो उसका रीजन हम समझ सकते हैं आराम से, जो अभी हमने देखा कि एक्चुअल रीजन है कि Fa का Fc से बड़ा होना। Fa मतलब adhesive force actually is always greater than the
cohesive force for the liquids like water, and because of that the resultant of Fc and Fa actually happens to be outside the liquid, lies outside the liquid. The resultant of Fc and Fa lies outside the liquid, and in order to be perpendicular to that resultant, the liquid molecules like A just get elevated up and forming a concave surface, and hence this angle of contact becomes acute like this. So ये होता है. This is the explanation of acute angle of contact, we can say. So these are the two explanations we can see. And in some case, if suppose Fc is too much small than Fa, suppose कभी कभी ऐसा भी होता है कि Fc जो है वो बहुत छोटा बन जाता है. मान लो कि ये सॉलिड का सरफेस यहाँ पे है, ये सपोज लिक्विड का सरफेस इस तरफ है, ये लिक्विड है, और समझो कि यहाँ पे Fc बहुत छोटा है, इतना छोटा जो दिखाई भी नहीं दे रहा है. सपोज ऐसे होगा वो 45 डिग्री पे ही, लेकिन बहुत छोटा होगा. और Fa जो है वो बहुत ज्यादा है उसके कंपेरिजन में, इतना ज्यादा जो हम उसको थोड़ा एग्जैगरेट करके इस तरह से उसको दिखा सकते हैं आराम से. और ऐसे केस में हम देख सकते हैं क्लियरली कि अगर एक डायगोनल या पैराग्राफ अगर बनाएंगे तो एक्चुअली वो पैराग्राम क्या, वो तो एक लाइन ही होगा. You can understand here. And if suppose this is still in the worst case, in the limiting case, this net force actually will be just along this Fa only. इस Fa में और F में कोई difference नहीं रहेगा. The limiting case we can say that this F will just coincide with the Fa only, and because of that we can say that this Fc is so small. ये जो Fc है वो इतना छोटा है जो सपोज दिख ही नहीं रहा है. तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं आराम से कि ये जो है अगर Fc बहुत छोटा बन गया तो उस केस में उसका जो रिजल्टेंट है Fc और Fa, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऑब्वियसली इट विल बी अलोंग दिस Fa only. And in that case, in order to be perpendicular to this resultant Fa भी वही है और F भी वही है. तो इस F को लेकिन परपेंडिकुलर रहने के लिए जो लिक्विड सरफेस है वो इतना स्टीपली इस तरह से बनेगा जो बिल्कुल वो वर्टिकल बन जाएगा. The surface of liquid will become just vertical like this, and the molecules of like A will just lift up in this way that the angle of contact will be almost zero. Sorry. So angle of contact will become equal to zero in this case. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं angle of contact becomes zero only in the case when Fa is going to be too much greater than Fc. So which happens in case of water. तो water का जो angle of contact है, pure water especially, not mineral water. तो pure water का अगर angle of contact हम देखेंगे with glass, तो water glass pair जो है उनके बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ऑलमोस्ट जीरो बनता है. तो थीटा इक्वल टू जीरो इन दिस केस. ये इसका एग्जांपल है, ये हम समझ सकते हैं आराम से. तो these are the explanations of why the angle of contact is acute in sometimes and why it is obtuse in other cases. So you can also see the slide here. तो ये देखो ठीक से इस स्लाइड के अंदर हमको क्लियर दिखाई दे रहा है. देखिए ठीक से यहाँ पे अगर इसको हमने अगर थोड़ा बढ़ा करके अगर देखा तो पता चलता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो कोहेसिव फोर्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो एडहेसिव फोर्स काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. और उसकी वजह से मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड विल ट्राई टू बी इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, एंड दैट्स व्हाई द लिक्विड सरफेस विल बिकम लाइक कॉन्केव लाइक दिस एंड फॉर्म एन एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट इन दिस वे. बट इन अदर केस, दूसरे केस में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पोर्शन है वो अगर हम थोड़ा इनलार्ज करते हैं इस तरह से, थोड़ा बड़ा करके अगर देखते हैं तो हम देख सकते हैं क्लियरली ये जो सरफेस ऑफ सॉलिड है, और अभी इसमें ये सॉलिड के सरफेस के साथ जो इनका फोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं है, जबकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. और इसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो अंदर की तरफ काम करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट the liquid molecules try to be away from the solid surface, and that's why they form a concave surface and form a obtuse angle of contact like this here.
तो ये दोनों चीजें हम समझ सकते हैं आराम से. Now we'll go to the next concept in this chapter, that is about Laplace law. तो देखो अभी ठीक से कि Laplace law हमको समझना है. What is Laplace law and how it can be proved? So let us go to the board once again. So try to understand. See here, suppose तीन केसेस हम सबसे पहले देखेंगे. सबसे पहला केस वो देखेंगे जिसमें समझो एक लिक्विड जो है एक कंटेनर के अंदर लिक्विड रखा हुआ है. ये सपोज कंटेनर है और उसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है. तो वो कंटेनर अगर बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब अगर फ्लैट है, तो उस केस में सरफेस लिक्विड का जो है वो फ्लैट रहेगा, नो डाउट. लेकिन अगर कंटेनर इस टाइप का है, जस्ट लाइक अ टेस्ट ट्यूब, यू कैन से एक टेस्ट ट्यूब के जैसा अगर कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड जो है जस्ट लाइक वाटर के जैसा लिक्विड अगर हमने डाल दिया, तो उस केस में लिक्विड का जो सरफेस है वो ऐसा कुछ बनता है. ओके, सो बेसिकली ये हम समझ सकते हैं आराम से कि ये जो एक सरफेस है लिक्विड का जो सरफेस है, whenever the surface is like this, it's called as concave. And suppose that there is a test tube and suppose we take a mercury like liquid in that. तो उसके अंदर अगर सपोज हम मर्क्यूरी के जैसा अगर लिक्विड लेते हैं तो उस केस में हमको उसका जो सरफेस है वो ऐसा दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स. एक्चुअली दिस इज द लिक्विड. ओके, एंड हियर इट इज आल्सो द लिक्विड. तो यहाँ पे इन तीनों केसेस में जो बेसिक डिफरेंस यही है कि इन द फर्स्ट केस द सरफेस इज फ्लैट, वी कैन से the surface is flat. In the second case, the surface is concave. Here it is concave, and in the third case, it's going to be convex. No doubt. So अभी यहाँ पे इन तीनों surfaces को अगर और डिटेल में और केयरफुली अगर देखेंगे तो समझ सकते हैं आराम से कि this is suppose the flat surface, and suppose this is the flat surface. Suppose ये surface flat surface का एक छोटा एलिमेंट अगर हम कंसिडर करेंगे जो बिल्कुल सेंटर में है, इसके सेंटर पे सपोज यहाँ पे ये सपोज एक एलिमेंट है ए बी, उसको नाम दे सकते हैं आराम से. सपोज दिस इज द एलिमेंट ए बी. ओके, नाउ विल सी दिस ए बी एलिमेंट विल एक्सपीरियंस द टू फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन. वन इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो एक तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस तरफ. इसको हम बोलेंगे सपोज सरफेस टेंशन का जो फोर्स है T. ओके, एंड द सेकंड फोर्स टू सरफेस टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट इन दिस डायरेक्शन. वी कैन कॉल इट एज T अगेन. इसको भी हम T बोल सकते हैं आराम से. तो अब ये दोनों फोर्सेस जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनका नेट फोर्स जो है वो 0 बन गया. तो इस एलिमेंट के ऊपर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो एक्चुअली 0 बनेगा. तो इसलिए हम समझ सकते हैं द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट AB becomes exactly equal to 0, no doubt. And since there is no force acting on this element AB, the element AB will neither experience a net force upwards or downwards, no doubt. तो ये नेट फोर्स जो है इस AB के ऊपर 0 है, no doubt. बट अभी अगर हम बात करते हैं एक दूसरे सरफेस की जो कि सपोज लाइक दिस है, ये इस टाइप का है. देखिए ये दूसरा जो सरफेस है वो सपोज कॉनकेव है. ये कॉनकेव सरफेस का हम एग्जांपल ले लेते हैं. तो डिटेल में हमको उसको डिस्कस करना है, तो उसके लिए उसको हम बड़ा दिखा रहे हैं इस तरह से. अभी इस कॉनकेव सरफेस का भी अगर एक छोटा एलिमेंट अगर हम कंसिडर करते हैं, सपोज वी कॉल इट एज AB once again.
तो इस एलिमेंट को हम ए बी नाम दे देंगे। इधर से इधर तक का जो एलिमेंट है उसको हमने ए बी नाम दे दिया। ठीक है, तो इस ए बी एलिमेंट के ऊपर इस सरफेस टेंशन की वजह से दो फोर्सेस काम करेंगे। एक तो इस पॉइंट पे काम करेगा जो कि ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, देखो ठीक से थोड़ा टेंजेंशियली, मतलब इस सरफेस को टेंजेंशियली होने के कारण इस डायरेक्शन में वो काम करेगा। और इस एलिमेंट पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो जरूर फिर से टेंजेंशियल होने की वजह से इस पॉइंट पे भी वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। Slightly it will be bent upwards like this. So we say that the two forces due to surface tension here are acting in such a way that they are producing a resultant in this direction here. Because if we draw the parallelogram here, तो अगर हमने पैराग्राम ड्रॉ किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पैराग्राम बनेगा, ये सपोज इस तरह से, ये सपोज ऐसा पैराग्राम बनता है। तो इस पैराग्राम का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा, ऊपर तरफ काम करेगा। एंड हेंस वी कैन से दैट दिस एवरी एलिमेंट, दिस एवरी पार्टिकल ऑफ दिस एलिमेंट AB will experience a upward force like this, and because of that we can say that the force acting on this element above this will be greater. That means we can say that this force will be distributed on this whole area of element AB, and that's why we can say that the total pressure, this force will create a pressure actually, because it is a distributed force, so it will create a pressure. So we can say that the pressure above the liquid, above the concave surface, is always going to be greater than the pressure below it. ये एक सिंपल सी बात हमको एक्सेप्ट करनी है कि प्रेशर, अगर सपोज यहाँ पे हमने प्रेशर बोल दिया P1 और यहाँ पे अगर प्रेशर जो है वो P2 अगर बोल के रखा है, तो we can say that the pressure P1 is going to be greater than pressure P2. So we can say that the pressure on concave side is greater than pressure on convex side. ये हमको इसमें से एज अ कंक्लूजन पता चला। तीसरी बात, अगर हम सपोज कंसिडर करते हैं एक दूसरा सरफेस जो कि कॉन्वेक्स है इस तरह से, ये देखो ठीक से, ये कॉन्वेक्स सरफेस को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। अभी इस कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में भी क्या होता है, देखो ठीक से, कि इफ यू कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दैट कॉन्वेक्स सरफेस एज AB हियर, तो ये जो एलिमेंट है वो अगर हम सपोज AB अगर मान लेते हैं, तो इस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं सरफेस टेंशन की वजह से, तो वो एक तो है इस डायरेक्शन में यहाँ पे slightly it is acting downwards, and here the force acting on due to this surface tension will again be acting slightly downwards, and because of these two forces due to surface tension, they will produce a resultant in the downward direction here. And in the same way we can say that at every point of this AB, the force due to surface tension will have a resultant in a downward direction, and hence this force acting per unit area will develop a pressure. And if we call this pressure at above this point here as P1, and here the pressure at below the point as P2, then we can say that this P1 in this case is going to be less than P2, which again means that the pressure on concave side, देखो ये concave side है और ये convex side है, और इसलिए हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि convex side का प्रेशर हमेशा कम हुआ करता है, जबकि concave side का प्रेशर हमेशा ज्यादा हुआ करता है। तो सरफेस चाहे कैसा भी हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, तो अगर कॉन्केव है तो ऊपर का पार्ट कॉन्केव रहेगा और नीचे का पार्ट कॉन्वेक्स रहेगा, तो ऊपर प्रेशर ज्यादा नीचे प्रेशर कम। और अगर प्रेशर सरफेस जो है वो अगर कॉन्वेक्स है तो ऊपर का पार्ट कॉन्वेक्स रहेगा, नीचे का पार्ट कॉन्केव रहेगा, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा और ऊपर का प्रेशर कम। तो हमेशा इसको हम एक वर्ड में या एक स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ऑलवेज 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 ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन convex side, and this is basically the important thing to understand here. तो अगर एक बार अगर हम ये समझ जाए कि pressure on concave side is always greater than pressure on convex side, then we can be able to understand the next concept in this chapter, that is about the what is the pressure difference then. तो यहाँ पे pressure difference कितना होता है वो हम समझ सकते हैं आराम से। So what is the pressure difference? You can calculate it. तो suppose एक सोप बबल या एक ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप है, ये सपोज एक लिक्विड का ड्रॉप है, अंदर में लिक्विड है,
तो हम समझ सकते हैं कि अंदर में कोई भी अगर एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं तो वो पॉइंट अंदर का जो है वो एक तरह से अंदर कॉनकेव सरफेस के तरफ का रहेगा। तो वहां पे प्रेशर अगर हम बोल देते हैं PI है, और बाहर का जो प्रेशर है उसको अगर हम बोल देते हैं PO है, which may be exactly equal to the atmospheric pressure normally. So PI is going to be greater than PO. So this is the conclusion, and the difference in these two pressures, PI minus PO, always happens to be equal to 2T upon R, where R is going to be the radius of this drop, and this has to be proved in the next lecture. यही हमको प्रूव करना है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको ही बोलते हैं लैपलास लॉ। रिमेंबर करेक्टली, दिस इज कॉल्ड एज लैपलास लॉ, and this Laplace law is to be proved on the basis of the surface tension, the concepts we have developed so far. तो अभी यहाँ पे ये अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही याद रख लो कि whenever there is a drop, liquid drop, we can say that the pressure inside that liquid drop is always greater than the pressure outside the liquid drop by an amount which is equal to twice the surface tension upon radius. So PI minus PO is always equal to 2T upon R. This is called as Laplace law, and that is we have to prove in the next lecture. So just let us finish this lecture here, and just revise all these concepts at home so that we can be prepared for the test for the next time. Okay, any doubt to anybody? तो कुछ पूछना है? Okay, so thank you all of you. अभी 7 बजे दीपक सर का लेक्चर होगा, सुनो ठीक से सभी। हाँ, 7 o'clock लेक्चर विल स्टार्ट। नेक्स्ट लेक्चर जो दीपक सर का जो लेक्चर है केमिस्ट्री का, वो 7 बजे चलेगा। ओके, okay, so just I will end this lecture here, and thank you all of you.